In today's episode, I'm going to answer questions on why things seem to become even more difficult to change when you actually take a decision to change something in your life. I'm also going to answer questions on if your partner is very dominating and they do not let you speak your point of view, how to improve your relationship in those cases. And the last question that I'm going to answer in today's episode is if you have been failing in your life to achieve something since years and years, and today you're really confused and directionless as to what path that you need to take going ahead in the future. How do you tackle that situation? So if you want answers to all of these questions, then make sure you stay till the very end. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. I welcome you to the third episode of Relentless Talk with Ravneet. Just like every other episode, I'm going to answer three questions today. So let's get started very quickly. Chaitali, what's the first question that we have for today? So the first question is from Pankaj from Guwahati through Facebook. He's asking, whenever I take a decision to make change in some aspects of my life, somehow things become even tougher than before. For example, since last few months, I often took a decision to take care of my diet regularly, work out, but something or the other happens which doesn't make me follow through on my decisions. My question is, why do things become tougher to change, especially when you really wanted to change? So Pankaj, right? Yes. Pankaj is saying why things become even tougher to change when you take a decision to change something. It's a very good question. This has happened with me as well years back. Whenever I used to take a decision to, let's say, change some part of my life, it used to become even more tougher. So it's a very good question that I want to answer today. First of all, let me ask all of you guys, people who are watching this, जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप अपने आप से खुद पूछिए, आपकी लाइफ में भी जब आप कोई डिसीजन लेते हो, तो क्या वो डिसीजन के बाद चीजें और टफ हो जाती है वो चेंज करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, आप डिसीजन लेते हो कि कल से मैं आई विल हैव द राइट डाइट, आई विल ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, पर कुछ ना कुछ हो जाता है जो वो चीज को और टफ बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अ डिसीजन, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, बट देन समथिंग अदर हैपेंस व्हिच मेक्स यू फॉलो थ्रू ऑन योर डिसीजन इवन मोर डिफिकल्ट. आपकी लाइफ में भी होता है. अगर होता है तो कमेंट करिए, अभी वीडियो को रोक के कमेंट करिए यस. मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीजें क्यों डिफिकल्ट होती है. जब भी आपको डिसीजन लेते हो टू चेंज सम पार्ट ऑफ योर लाइफ, the reason it becomes difficult because the first thing which most people are not aware of, the reason it becomes difficult because you're always going to be tested by the universe, by some high energy, by some power out there which is going to test you whether you are really relentless enough to stick to that decision. So today you are saying, Pankaj, कि मैं जब डिसीजन लेता हूँ to follow a good diet, to work out regularly, कुछ ना कुछ हो जाता है जो मेरे को अपने डिसीजन फॉलो थ्रू करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. क्या पता जब आपने डिसीजन लिया दैट आई एम गोइंग टू फॉलो गुड डाइट, क्या पता उसी दिन आपके घर पे कुछ बहुत डिलीशियस सा बन गया व्हिच इज योर फेवरेट फूड. क्या पता जिस दिन आपने डिसीजन लिया उसके अगले दिन ही देयर इज सम टेम्पटेशन, देयर इज सम क्रेविंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. क्या पता यू हैव बीन आस्क्ड टू गो टू अ पार्टी द वेरी नेक्स्ट डे एंड इन दैट पार्टी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो अ गुड डाइट. ये रियलिटी है, ये चीजें होती हैं. जब आपने डिसीजन लिया टू वर्क आउट रेगुलरली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्या पता उस दिन बारिश हो गई एंड दैट बिकम्स अ रीजन, दैट बिकम्स अ एक्सक्यूज इन योर हेड कि छोड़ यार आज नहीं कल कर लेते. क्या पता यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, आपने पूरे दिन काम करा एंड द इवनिंग व्हेन यू आर सपोज्ड टू गो टू द वर्कआउट, व्हेन यू आर सपोज्ड टू गो टू द जिम फॉर योर वर्कआउट, आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज देता है छोड़ यार बहुत थके हुए हैं. सबसे पहली जो चीज होती है जब आप डिसीजन लेते हो कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट चेंज करने के लिए, यू विल ऑलवेज बी टेस्टेड, व्हिच इज व्हाट मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. एंड व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड, मोस्ट पीपल फेल इन दोस टेस्ट. रीजन हमारी लाइफ चेंज नहीं होती है बहुत सारी चीजों में, बिकॉज जब टेस्ट आता है हम बार बार टेस्ट में फेल हो रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि लाइफ के लिए चेंज हो रही है. सो पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, you will always be tested by either the universe, higher power, higher energy, whatever that you may like to call it. हम हमेशा टेस्ट होएंगे कि हमारा जो डिसीजन है, is that decision strong enough to be able to hold on to that decision, to be able to follow through on that decision. पहली चीज, you are always going to be tested. Second thing, जब आप टेस्टेड होगे, अगर आपने गिव अप मार दिया तो ये लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी. लाइफ का वो एस्पेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. You need to be resilient enough, you need to be relentless enough. जो भी चीज आपके सामने आ रही है, जो डिफिकल्टी आपके सामने आ रही है, you need to make sure you have a strong mindset, a relentless attitude to not give up. Because if you're going to give up on that day, you're going to create one more reference in your head कि अगेन डिसीजन लिया और अगेन दोबारा नहीं हुआ.
दोबारा आप डिसीजन लोगे, दोबारा मुश्किलात आएंगी और दोबारा जब आप गिव अप मार दोगे एक और रेफरेंस बनेगा। इस तरीके से आपके नेगेटिव रेफरेंसेस बढ़ते रहते हैं और आप एक स्टेज पे आके अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि ये मैं चेंज कर ही नहीं पाऊंगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम टेस्ट के सामने फेल हो रहे हैं और ये रियलिटी है। सो स्टेप 1, रिकॉग्नाइज कि जब जब आप एक डिसीजन लोगे कुछ चेंज करने के लिए, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी टेस्टेड। स्टेप 2, व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द एक्सक्यूज जो आपका दिमाग दे रहा है टू गिव अप, बी रेजिलिएंट इनफ, बी रिलेंटलेस इनफ टू स्टिल do that thing, because only when you create a new reference for yourself that I can do it, then only you will have the confidence that you can make a permanent change in that aspect of your life. So I hope that answers your question, Pankaj. So let's move to the next question. What's the next question that we have for today, Chetani? So next question is from Sarika from Delhi through WhatsApp. She's asking how to improve a relationship where your partner tends to be very dominating at times. They do not let you speak your point of view at all and thinks they are always right. Sometimes I feel as a woman, do I not have the right to respond back or to express what I need to say? I feel really helpless at times and have a lot of fear within me as to what might happen if I respond back. Can you please help? So Sarika, आपका पूरा हक है to be able to put forward your point of view as a woman. ऐसा कुछ नहीं है, just because you're a woman you have no right to be able to do that. ये जो सोच है ना, ये पुराने ज़माने में बहुत रही है। इनफैक्ट मेरी मम्मी की जनरेशन में भी ऐसी सोच थी कि कहीं ना कहीं एज अ वुमन डू आई नॉट हैव द राइट। नो, देयर इज नो वुमन, देयर इज नो मैन, देयर इज नो ट्रांसजेंडर, देयर इज नथिंग। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव द राइट टू स्पीक आवर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी नीड टू। अब लेट मी आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है और वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना पर्सपेक्टिव पुट फॉर्थ नहीं करने देता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उनको डोमिनेट अपने आप को करवाने के लिए इजाजत दी है और वो आपने बहुत देर से दे रखी है। ये बात सुनने में ना थोड़ी सी परेशान करेगी आपको, बट ये सच्चाई है। कोई भी हमें डोमिनेट नहीं कर सकता ओवर पीरियड ऑफ टाइम unless we do not give them the permission to dominate us। हमने वो परमिशन दी है। वो पैटर्न जो बन चुका है डोमिनेशन का इसलिए बन चुका है क्योंकि हमने परमिशन दे रखी है। उनके दिमाग में भी है कि हाँ यार, आई कैन डोमिनेट माय पार्टनर, आई कैन डोमिनेट सारिका, बिकॉज सारिका ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। वी हैव अलाउड पीपल टू डोमिनेट। नाउ एक वॉइस आपकी ये भी बोलेगी अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि रवनीत उनका नेचर ही डोमिनेटिंग है, उनका नेचर डोमिनेटिंग है एंड माय नेचर इज नॉट डोमिनेटिंग, सो दैट्स द रीजन ही इज डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग मी ऑल द टाइम। ये एक रीजन है अपने आप को जस्टिफाई कराने का व्हाई वी आर बीइंग डोमिनेटेड। आस्क योरसेल्फ, इज ही एग्जिबिटिंग द सेम बिहेवियर विद अदर पीपल इन हिज लाइफ? क्या वो सेम तरीके से डोमिनेट करते हैं बाकी लोगों को भी, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, बॉस को? क्या वो सेम तरीके से करते हैं? आंसर विल बी नो। ऑब्वियसली इज नॉट डोमिनेटिंग अदर पीपल जस्ट द वे ही इज डोमिनेटिंग यू। क्या पता आपको ये भी लग रहा हो कि हाँ रवनीत वो सबको डोमिनेट करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को डोमिनेट करते हैं, वो रिलेटिव्स को डोमिनेट करते हैं, वो सबको डोमिनेट करते हैं। वो भी अगर मान लिया जाए तो उनकी लाइफ में आज तक लगता कोई आया ही नहीं है जो उनको डोमिनेट ना करवाने दे अपने आप को। पॉइंट ये नहीं है कि किसका डोमिनेटिंग नेचर होता है तो वो किसी को भी डोमिनेट करेगा। सबसे पहली चीज होती है हम दूसरे बंदे को परमिशन देते हैं टू बी एबल टू लेट देम डोमिनेट अस। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम परमिशन क्यों दे रहे हैं, हम उनको क्यों, हम व्हाई वी आर नॉट एबल टू पुट अक्रॉस अ पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझने के लिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, why are you letting somebody to not let you speak your point of view? मुझे नहीं पता आपका डोमिनेशन से मतलब क्या है। आपका डोमिनेशन से ये मतलब है that he is raising his voice, he is shutting you down, he is not letting you speak your point of view। क्या मतलब है आपका डोमिनेशन से? जो भी मतलब हो, आपको ये समझना है कि आप उनको डोमिनेट करने क्यों दे रहे हो। क्या आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज है, क्या कोई फियर्स है कि अगर मैंने रिस्पॉन्ड बैक किया तो क्या होगा? You need to first of all ask yourself, what is the reason? What is making you let them dominate you? Second thing is you need to start standing up for yourself. Now standing up for yourself का मतलब ये नहीं होता कि आप give it back करो उनकी सेम भाषा में। Standing up for yourself इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप जाओ, आपने रणवीर सिंह चौहान सुना और कल से आप जाओ और आप भी लड़ाई करो, आप भी झगड़ा करो। उस तरीके से कभी रिलेशनशिप में चेंज नहीं होती। आप स्टैंड अप करें तो करें कैसे? You need to do few things. You need to have self confidence on yourself for you to be able to let them understand. Make them understand that you know what, I also have a point of view which I need to put across. You need to have self confidence, क्योंकि जब तक वो self confidence नहीं रहेगा अपने लिए स्टैंड करने के लिए, दुनिया तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी। वो आपके पति के बारे में बात नहीं है, वो दुनिया का नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है। इफ यू लेट एनीबॉडी डोमिनेट यू, दे विल डोमिनेट यू। सो आपको पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ।
सेकेंड थिंग जो आपको सीखनी पड़ेगी, यू नीड टू नो हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। कि जब जब आपको डोमिनेट करते हैं, जब जब अपनी वॉइस रेज करते हैं या आपको शट डाउन करते हैं, अगर आप उस चीज से इफेक्ट हो गए तो फिर यू विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू डू द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड द थर्ड थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। आपको सीखना पड़ेगा हाउ डू यू कम्युनिकेट टू दैट पर्सन, टू योर हस्बैंड, टू योर पार्टनर एंड इन्फ्लुएंस देम, जिससे वो समझे आपकी बात को कि हाँ, आई कैन नॉट टेक माई पार्टनर फॉर ग्रांटेड। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। इफेक्टिवली कम्युनिकेट मतलब किस तरीके से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो कि जो जिससे वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दे। मोस्ट पीपल विल फाइट, मोस्ट पीपल विल गिव इट बैक इन द सेम लैंग्वेज। इस तरीके से रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगा। दे विल बिकम मोर एग्रेसिव। द रीजन दे विल बिकम मोर एग्रेसिव बिकॉज उनको भी आदत नहीं है टू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। उनके दिमाग में भी रेफरेंस है कि हाँ, मेरी पार्टनर कभी भी मेरे को गिव इट बैक नहीं करिए, तो अगर आपने गिव इट बैक किया उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, तो वो और एग्रेसिव हो जाएंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ डू आई इफेक्टिवली कम्युनिकेट, how do I influence my partner for him to understand that I also need to put across my point of view. Let me summarize it for you. First of all, if your partner is dominating you, we are allowing them to dominate us. If we are allowing them to dominate us, we need to figure out what is the reason. Is there any fear? Is there any insecurity? आपको वो क्वेश्चन पूछना है कि किस रीजन की वजह से मैं डोमिनेट करने की परमिशन दे रखी है। फर्स्ट थिंग जो आपको सीखनी पड़ेगी, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बाय हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा दैट आई नीड टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग फॉर मी टू नॉट गेट अफेक्टेड। जब जब वो मेरे को डोमिनेट करे, आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड, बिकॉज अगर आप अफेक्ट हो जाओगे तो आप भी उसी तरीके से, उसी भाषा में आप गिव इट बैक करोगे, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड योर पार्टनर टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। And the third thing which you need to learn is you need to learn how to effectively communicate and influence your partner so that वो भी अपने behavior में, अपने actions में change करे, so that they give you the opportunity for you to be able to put across your point of view. Effective communication, how to influence people. This is something that I teach in my relationship mindset program. So if you want to become a part of that, you can become a part of that. But this is not the platform where I can teach all of that because it takes time. So I hope this is the answer which can help you in some way or the other. So let's move to the third question. What's the third question that we have for today? So the third question is from Srinivas from Bangalore through Twitter. He's saying that I'm failing in my CA final exams for last 7 years and it has affected my confidence a lot. I do not know what to do right now and is really confused and frustrated which path to take. Okay, so Srinivas, fantastic question. मैं बहुत सालों से फेल हो रहा हूँ अपने सी एग्जाम्स में एंड टुडे आई एम रियली कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी कि कभी भी हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को या फ्यूचर को डिक्टेट नहीं कर सकता। आपको मैं अगर अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं भी किसी चीज में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं पाई है। अगर इफ आई गो बैक 12 years back in my life when I was applying for my campus placement, I failed interview after interview after interview. I think I failed around 9 to 10 interviews, after which I got my placement, I got my first job. मेरे कोचिंग करियर में भी ऐसे बहुत टाइम आया, शुरुआत का 1 साल, जब मैं फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था। बट बार बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आगे भी सक्सीड नहीं करूंगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ सालों से अपनी सी के एग्जाम से फेल हो रहे हो, आज आपको जो कॉन्फिडेंस डाउन है वो इसलिए डाउन है क्योंकि आपका फोकस जा रहा है कि मैं पिछले 6-7 साल से फेल हो रहा हूँ, इतने अटेम्प्ट्स कर दिए हैं इसलिए फेल हो रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज पास हो पाऊंगा। आप अपना प्रेजेंट भी अपने पास के ऊपर डिक्टेट कर लो। कभी भी आपका प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो या फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय योर पास्ट। Just because something has not happened in the past does not mean it cannot happen again. That's the first thing. आपको अपना past baggage को drop करना पड़ेगा। Second thing that you need to understand is, अगर आज आप confused हो and directionless हो कि मुझे क्या path लेना चाहिए because you've been failing, आप जो confused हो वो इसलिए confused नहीं हो कि you have been failing in your CA exams। जो आप confused हो ना, maybe इसलिए confused हो कि क्या पता this is something that you do not even want to do। Pursuing CA, becoming a finance professional, may be something that you are doing it for the sake of doing it. Maybe because your parents have told you so. Maybe आपकी जिद बन गई है कि मुझे CA एग्जाम करना ही करना है। Maybe you don't know what else to do. क्या पता ये CA चीज करना आप is something that you don't want to do. Is the reason you are becoming confused after failures? क्योंकि अगर ये सच में वैसी चीज होती जो आपको करना ही करना है, you want to become a CA, you want to become a finance professional, अगर ये सच में आपका दृढ़ निश्चय होता ना, तो आप कितने बार भी फेलियर आपकी लाइफ में आएगा ना टू पास एग्जाम, यू विल नॉट
become confused. You will not feel directionless. मेरे कोचिंग में भी मैं बार बार फेल हो रहा था, मैंने छोड़ा नहीं या मैं कंफ्यूज नहीं हुआ कि मुझे ये करना है नहीं. क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि हाँ मुझे करना है. मुझे इसलिए करना था बिकॉज दैट बिकेम माय पैशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स द रीजन मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ. जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं आज डायरेक्शनलेस हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि क्या पता जिस चीज को हम कर रहे हैं वो चीज हम करना चाहते ही नहीं है. सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, इज दिस समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू? And if not, you need to explore more things. You need to figure out what exactly that you need to do. If you get an answer to that question, then you need to make sure that you cannot give up. Just because आपका past में आप succeed नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है आगे भी succeed नहीं होगे. So you need to be resilient enough for you to not give up. अगर आज तक आप fail हुए तो आप figure out करो कि मैं fail क्यों हो रहा हूँ. Do I need to work harder? Do I need to work smarter? Do I need to fill out more mock exams? मुझे क्या और पढ़ाई करनी है? What exactly is the new input that you need to give while preparing for the CA exam so that you can pass, you can succeed the next time? So answer to your question is this: अगर आप फेल हो रहे हो आज तक, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे भी फेल होगे. आपको अपने पास्ट बैगेज को ड्रॉप करना पड़ेगा. और अगर आप कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस हो, तो आपको ये पूछना पड़ेगा क्या ये CA मैं सच में करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में. अगर नहीं करना चाहते, you need to explore something. You need to figure out what exactly that you need to do. But if you still want to do CA, then you need to make sure you work harder, you work smarter, you give new input, you figure out what exactly that I'm lacking in so that you can make it, you can correct it, and then you can succeed in the future. So that would be my answer to your question. I hope that helps. So with this, we have come to the end of the third episode of Relentless Talk with Ravneet. I hope this show is worth your time. I hope you're getting to learn something from the questions that people are asking and the answer that I'm giving. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, please put your question to me on Facebook, on Twitter, on Instagram, on LinkedIn, or you can put your question to me on my office WhatsApp number which is displayed on the screen. And I'm gonna see you next week on the 4th episode of Relentless Talk with Ravneet.